Hi everyone, how are you? Hope all of you are fine. So today again I am here with one more video to discuss about the objectives of business. So objectives of business means what? With what purpose or with what aim do we do business? हम किस एम से हम बिजनेस करते हैं? बिजनेस करने के पीछे वजह क्या है? बिजनेस का क्या मुद्दा होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे. तो objectives of business can be classified into two ways or two headings, that is economic objectives of business and social objectives of business. So as I have said, the concept of business is very broad. So to understand the objectives of business also, it is a very vast uh, concept. So that is why, to have a clear idea regarding the objectives of business, we have to go in a two hands, you can say, right hands and the left hands. So in board you can see I have written the objectives of business, that is economic objectives and social objectives. So according to the economic objectives, what the business try to do, and according to the social objectives, what the business try to aim. So we'll discuss very clearly the two objectives of business and to have the idea regarding the overall objectives of a business. Now first of all, what is economic objectives? The objective which is related to the terms of finance or money, you can say, come under the economic objectives. जो जो बातें बिजनेस का पैसा से रिलेटेड होता है उसको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हैं. और जो जो तुम्हारा काम डायरेक्टली पैसा के साथ रिलेटेड नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है, उसको हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हैं. जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा था कि एक्टिविटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स. Human activities are of two types, that is economic objectives and non-economic objectives. So similarly here also we are finding two types of objectives of a business: economic objectives and non-economic objectives. Now let us have a clear idea regarding the economic objectives. So with the aim of economic objectives, a business try to achieve what? First of all, you see economic objectives, फर्स्ट वन इज़ द अर्निंग प्रॉफिट. तो बिजनेस का पहला जो ऑब्जेक्टिव्स होता है वो चाहता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे. किसी भी बिजनेस का, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था, किसी भी बिजनेस का आरंभ होने का पीछे पहला जो प्रमुख वजह होता है वो होता है कि मुनाफा अर्जन करना, या तो टू अर्न द प्रॉफिट. See, without earning the profit, a business cannot survive, or without earning the profit, any activities are being done cannot be said as a business. As we have seen the characteristics of business, any activities or any activities, that is economic activities, which is being done and the aim behind that economic activity is to earn profit, will be said to be as a business. So that is why the first objectives of the business is to earn profit. क्योंकि प्रॉफिट अगर अर्न नहीं होगा तो वो बिज़नेस सरवाइव नहीं कर पाएगा. सरवाइव करने का मतलब ही वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा बहुत दिनों तक. सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. आफ्टर अर्निंग द प्रॉफिट ओनली द बिजनेस विल सर्वाइव. द बिजनेस मैन विल अर्न प्रॉफिट. ही कैन टेक हिज livelihood, he can pay the salaries, wages, etc. So that is why earning profit is the main objectives of economic objectives of a business. Second one is creation of customers. Now see, what do you mean by this creation of customers? Creation means create, उत्पन्न करना, तैयार करना भी बोल सकते हो, of customers. हम अगर कस्टमर्स को नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो सीमित तक रह जाएगा. तो बिजनेस का अर्थनीतिक उद्देश्य के अनुसार बिजनेस ये भी चाहता है कि अपना कस्टमर का जो नंबर्स है उसको बढ़ाए. नहीं तो क्या होगा, चलो मान लो हमारे पास में अभी 50 कस्टमर्स है,
हम उनको प्रोडक्ट बिक्री कर रहे हैं 2 रुपया करके फ़ायदा कर रहे हैं, तो 50 में से हमको 100 मिला। अगर हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं हमारा प्रॉफिट का मार्जिन, तो हमको कस्टमर्स को बढ़ाना पड़ेगा। सो दैट इज़ द सेकेंड वन इज़ क्रिएशन ऑफ customers. We have to means extend the limit of our customers by any means. Any means, if I am to say that you have to provide the it depends upon the goods and services that you are providing to your customers. Then business must aim at earning profit beyond the limited extent, because if the business want to grow, then he must that must do the more and more profit. So and this will again need the numbers of customers. Now again third one is innovation. Now what is this innovation? Innovation का मतलब है कुछ नतुनत्ता, मतलब कुछ नयापन। अगर हम बिजनेस में एक ही तरह का एक्टिविटीज़ करते जा रहे हैं तो वो बिजनेस कुछ समय तक जाके वो रुक जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आप ये सेल कंपनी का ले लीजिए, कोई हमारा इंडियन कंपनी ले लीजिए या फॉरेन कंपनी कोई भी ले लीजिए। हम हमारे इंडियन कंपनी लेते, जैसे कि नोकिया। पहले एक मोबाइल फ़ोन आता था, सेल फ़ोन, वो बहुत बड़ा सा, वो बटन होता था, एरियल होता था। तो वो नोकिया उस तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज आ गया, तरह तरह के मल्टीमीडिया वाले जो आजकल तो बहुत सारे अप टू डेट मोबाइल फ़ोन्स आ गया, तो उनको भी एक जगह पे रहने से उस सेल फोन तक रहने से उनका मार्केट लॉस होता रहा। तो उन नोकिया ने भी आजकल दूसरे कंपनी के साथ compete करके अपना जो प्रोडक्ट्स डिमांड के अनुसार, कस्टमर का जो डिज़ायर है उसके अनुसार बनाना शुरू कर दिया। तो दैट इज़ द मीनिंग इनोवेशन। यू मस्ट ट्राई समथिंग न्यू इन योर बिजनेस जस्ट टू अट्रैक्ट योर customers. Okay, so that is the meaning of innovations. And the last objectives of a economic objective of a business tries to optimum utilization of resources. आपका प्रॉफिट तभी बढ़ेगा, आपका कस्टमर्स तभी बढ़ेगा, आपका नयापन तभी आएगा आप अगर आपका जो भी रॉ मटेरियल्स है, जो भी मैन पावर है, जो भी मशीनरीज है, एज ए होल यू कैन से रिसोर्सेज, मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी, इनको अगर हम उत्तम से उत्तम स्थान तक अगर यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो ये हमारे बिजनेस के लिए फ़ायदाजनक नहीं होगा। इट विल बी नॉट ए profitable activities of business if we are unable to utilize our resources to the optimum level. Then only it will be a very good business activities. Okay, so this is economic activities that you can say: earning profit, creation of customers, innovations, and utilization of proper resources. Now next come to the right hand side. Here you can see social objectives. Now what is this social objectives? Social objectives means, as I have said, business cannot be done in isolation. Isolation means आप पहाड़ में या तो जंगल में जाके आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप सोसाइटी को छोड़ के आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो आप जब सोसाइटी में बिजनेस कर रहे हो तो आपको सोसाइटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। यू हैव टू, दैट इज़ ए फॉर्मूला, गिव एंड टेक। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफ़िल अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल नहीं होगा। तो सब सोशल ऑब्जेक्टिव्स एक बिज़नेस किस तरह से फुलफ़िल करता है, जैसे कि पहला आ गया तुम्हारा क्वालिटी गुड्स। आप अगर बिज़नेस करते हैं तो आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि क्वालिटी गुड्स कैसे हम प्रोवाइड करें, ताकि कस्टमर्स उस गुड्स को लेके जो अपना डिज़ायर है, वांट्स है, वो अपना सेटिस्फाई हो सके, फुलफ़िल कर सके उस गुड्स के दौरान। तो ये हो गया तुम्हारा पहला, क्वालिटी गुड्स। यू मस्ट ऑलवेज ट्राई टू गिव योर कस्टमर ए गुड एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सो दैट आफ्टर यूज, आफ्टर कंज्यूम, दे आर सेटिस्फाइड बाय योर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट नंबर 2 इज़ फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। दूसरा बात ये है, जैसे कि अगर क्वालिटी गुड्स के बारे में बोले हम, অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে যে টেঙা আম বজাৰত এবাৰেই বিক্ৰী হয়। हम झूठ बोल के या किसी को मिसलीड करके हम ज़्यादा दिन तक हमारा प्रोडक्ट हम बिक्री नहीं कर पाएंगे। तो यही बोलता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम कैसे बेचना चाहिए। सेम इज़ ए केस फेयर एंड ट्रेड प्रैक्टिस। आपको फेयर मतलब उचित
यहाँ पे फेयर एंड लवली मतलब वो सुंदरता की बात नहीं बोल रहे। फेयर मतलब उचित, ट्रेड मतलब व्यापार, प्रैक्टिस मतलब आपका कायदे कानून। तो आपको हमेशा बिजनेस में उचित जो होता है वही करना चाहिए। आपको चीटिंगबाजी नहीं करना चाहिए, आपके धोखे नहीं देना चाहिए, आपको जैसे कि 2 नंबरी नहीं करना चाहिए, माल प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पे आता है। सामान मार्केट में है अवेलेबल, लेकिन होलसेलर्स क्या बोल रहे हैं, सामान नहीं है। वो इसलिए क्यों बोलते हैं, जैसे कि प्राइस को ऊपर लेने के लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए बोला है। ये होता है दूसरा सामाजिक उद्देश्य एक बिजनेस का। तीसरा हो गया जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक अच्छा बिजनेस हमेशा ट्राई करता है कि वो नियुक्त प्रदान करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जनरेट करे, ताकि समाज में जो लोग हैं उनको कुछ काम दे सके, उनको कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करे। ये एक अच्छा बिजनेस का काम होता है। Now students, again one more thing I have to tell you, that whenever we are discussing about these things, you should always keep in your mind that we are not discussing a very small business concept, we are discussing a very large concept of business. Yes, business may be very small, business may be very large. Now why I am saying this, generation of employment, नियुक्त प्रदान करने का जो काम होता है, अगर एक जैसे कि एक पान दुकानदार है, एक पान दुकानदार भी, ये भी बिजनेस है, लेकिन पान दुकानदार के लिए शायद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का सवाल उठता नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन एक लार्ज इंडस्ट्री है, एक बड़ा सा तुम्हारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्री है, तो वो लोग ये काम कर पाएंगे। तो हम जब ये मुद्दा समझते हैं, हम ध्यान में रखेंगे कि लार्ज स्केल बिजनेस के बारे में सोच के ही हम समझने की कोशिश करेंगे। चौथा आ गया वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। जैसे कि देखो, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, कोई भी बड़ा इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, कंपनी में जब एम्प्लॉयज़ होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब ये जो एम्प्लॉयज़ आएगा तुम्हारा कंपनी में, वो बाहर से आएगा, तो उनका वेलफेयर के बारे में सोचने का काम भी किसका होता है, इस बिज़नेस का होता है। मीन्स उनको फेयर सैलरी देना, उनको उचित ट्रेनिंग प्रदान करना, उनको अच्छा काम का एनवायरनमेंट प्रदान करना, ये सारे चीज़ आ जाता है तुम्हारा वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। उनको मतलब बोनस प्रदान करना, उनको अगर प्रोवाइडेड कंपनी का रूल्स में ऐसा है कि जैसे कि एजुकेशन, फ्री मेडिकल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे चीज़ तुम्हारा वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ में आ जाता है। पांचवा जो है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। हाँ, अभी देखो, ये पांचवा है वेलफेयर, मतलब उनका जो समाज के प्रति जो उनका दायित्व होता है। वेलफेयर का मतलब यही है, जैसे कि हम एनवायरनमेंट को हम गंदा नहीं कर पाएंगे, एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे चीज़ आता है तुम्हारा वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के बारे में आपको सोचना है, मतलब यू कैन नॉट पोल्यूट द सोसाइटी, यू कैन नॉट give any kind of hazardous goods or product to the society. So that will be a what an activity which is against the society, so that must be also looked after by the business. And the last one is the protection of environment. So this also come under as a link between the welfare of the society and protection of environment. हम परिवेश को हमेशा सुरक्षित करने का, संग्रह करने के बारे में भी एक बिज़नेस को सोचना चाहिए। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, वो काला धुआं निकालता है, जो ख़राब पानी निकालता है, इन सारे चीज़ों को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, ताकि हम अगर परिवेश को गंदा करें, परिवेश को हानि करें, तो ये अल्टीमेटली हमारे ऊपर ही आएगा। कैसे हमारे ऊपर आएगा, ये तुम्हारा सोसाइटी में प्रभाव गिराएगा। जैसे कि बीमारी उत्पन्न करना इस तरह से होता है कि तो वो अल्टीमेटली तुम्हारा लोगों को मतलब हानि होगा, तो ये अल्टीमेटली आके तुम्हारा बिजनेस में भी होगा। तो ये सारे चीज़ें हैं जिसके दौरान हम सामाजिक जो उद्देश्य होता है, आई मीन टू से द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए बिजनेस कैन बी फुलफिल और ऑब्टेन बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, generation of employment, welfare of employees, welfare of society, and protection of environment. So these are the two concepts by which we can understand the overall objectives of a business. So thanking you all students, I hope you have got some idea regarding the objectives of business. Thank you.